Good morning, students. Again, welcome back you all in my class. So, students, today in this class, I am going to discuss about again. I am going to discuss about the term economics. Then, what are the different definition of economics? Okay. So, I have already discussed about all this. So, in this class, मतलब मैं आप लोगों को just एक revision class. This is your revision class. Okay. So please listen my words carefully. Okay. सो देखो व्हाट डू मीन बाय द टर्म इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है. सो इकोनॉमिक्स इट इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस. ओके, इट इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस out of limited resources. Okay, means we have to use our limited resources properly or efficiently so that it gives us maximum level of satisfaction. हमारे पास जो resources available है, जो resource भी हमारे पास है, जो limited resources हमारे पास है, उसको ही हमें क्या करना है, अच्छे से properly efficiently use करना है. ठीक है, so that वो हमें क्या दे, maximum level of satisfaction दे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, फिर से मैं आप लोगों को बोलती हूँ. देखो, एज वी नो दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. ओके, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट resources are limited in nature and resources have alternative uses. Okay, resources have alternative uses, so we have to, whatever resources we have to uses all these resources properly और efficiently so that हमें क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. ओके स्टूडेंट्स, आई होप, वो तो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, आई होप फिर से आपको समझ में, इस क्लास से और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा. ओके. So देखो, I have also said that from where the word economics has been derived. The word economics has been derived from Greek word. From where the word economics has been derived? It is derived from Greek word. Okay. So it is a combination of how many words? That is two words, oikos and nomos. What do you mean by the term oikos? That is house. And what do you mean by the term nomos? That is मैनेजमेंट. ओके, मतलब किस तरह से हमें अपने फैमिली को, हाउस होल्ड को और हाउस को मैनेज करना है. ओके, सो इकोनॉमिक्स एक्चुअली टीचेस अस हाउ टू मैनेज आवर हाउस होल्ड प्रॉपरली और इफ़िशिएंटली विथ आवर लिमिटेड इनकम. तो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि मीन्स आपका इकोनॉमिक्स मतलब पापा के बारे में, हेड ऑफ द फैमिली, जैसे कि आपके फैमिली के हेड कौन है और वो किस तरह से अपनी लिमिटेड इनकम से अपने फैमिली को मैनेज करते हैं, है कि नहीं. रिसोर्सेज का मतलब क्या है. देखो, आपका पैसा भी आपका रिसोर्स हो सकता है, आपके पास जो लैंड है वो भी आपका रिसोर्स है, जो भी एसेट आपके पास है, ऑल दीज आर रिसोर्सेज फॉर यू. ओके. So students, देखो next is I have also said that there are mainly four definition of economics. That is evolution in the definition of economics. There are mainly four definition of economics: wealth definition, welfare definition, scarcity definition of economics, and growth definition of economics. These four definition are very very important for your exam. From this four definition, definitely you will get one question. You will get at least two question. Okay, in your final exam. So please, आपको नाम याद करना है. मीन्स हु गेव वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, देन हु गेव वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, देन हु गेव स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. इसके बाद किसने दिया ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. आपको इकोनॉमिक्स का नाम ओके याद करना है. सो देखो स्टूडेंट्स, wealth definition. This definition was given by economist Adam Smith. He is also known as what? He is also known as father of economics, Adam Smith. ओके, आपको मैंने बोला है कि who is considered as a father of economics? Adam Smith. Okay, so wealth definition of economics was given by Adam Smith in the year 1776. In the year 1776. ओके, एंड कौन सा बुक में उन्होंने वो डेफिनेशन दिया वो भी आप लोगों को मैंने वीडियो क्लास में बोला था. तो प्लीज़ राइट ईच एंड एवरी points from the video lecture. Okay, so next is welfare definition. So welfare definition of economics was given by Alfred Marshall and this definition was given in the year 1890. कौन सा साल में दिया था? That is in the year 1890. Okay,
So what do you mean by scarcity definition? So scarcity definition of economics was given by Robinson. Okay, Robbins ने दिया था, कौन सा ईयर में दिया था? He gave this definition in the year 1932. Okay, so then growth definition was given by economist Samuelson. Okay, सैमुअलसन ने दिया था, कौन सा साल में दिया था? दैट इज़ इन द ईयर 1948. ओके, सो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बोला है कि वेल्थ डेफिनेशन मतलब क्या है. देन मेरे वीडियो लेक्चर में अवेलेबल है, वो मैं सिर्फ आपको रिवीजन दे रही हूँ, मतलब रिवीजन करा रही हूँ. ओके, सो वेल्थ डेफिनेशन जो है, एडम स्मिथ ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस वेल्थ को दिया था, दैट इज़ ऑन जैसे कि संपत्ति को. इसके बाद एल्फ्रेड मार्शल ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस वेलफेयर को दिया था, समाज कल्याण को, लोगों का कल्याण को, दैट इज ह्यूमन वेलफेयर. देन रॉबिन्स ने क्या किया था? रॉबिन्स ने क्या बोला था कि हमें किस तरह से स्कैर्स रिसोर्सेज प्रॉपरली और एफिशिएंटली यूज़ करना है. जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, स्कैर्स है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, तो उसको हमें अच्छे से यूज़ करना है. सैमुअलसन ने भी बोला था कि जो हमारे पास रिसोर्सेस है वो अगर हम लोग अच्छे से यूज़ कर पाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा. वो हमें क्या देगा? हायर लिविंग स्टैंडर्ड देगा. अगर हमारे पास जो भी है उसको अगर हम लोग अच्छे से प्रॉपरली यूज़ करते हैं, देन वो हमें क्या देगा? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मीन्स हायर लिविंग स्टैंडर्ड देगा. ओके, जो भी हमारे पास है अगर उसको अच्छे से मैनेज करके प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, देन उससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा. देन उससे हमें जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आपका क्या होगा? हाई होगा. ओके, सो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, वेल्थ डेफिनेशन 1776 को दिया था उन्होंने. एडम स्मिथ में कौन सा बुक में दिया था? ही गेव दिस डेफिनेशन इन हिज बुक एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन. ओके, एंड ही गेव दिस डेफिनेशन इन द ईयर 1776. ओके, and he gave, first of all he gave more emphasis on what? He gave more emphasis on I have already said that he gave more emphasis on wealth, that is on sampatti. So next is देखो पिक्चर ऑफ एडम स्मिथ. वो एडम स्मिथ है. वो भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा साल में वो डेफिनेशन दिया एक मार्क का, एंड कौन सा बुक में उन्होंने वो डेफिनेशन दिया. सो प्लीज़ आप लोग देखना. नेक्स्ट इज welfare definition of economics was given by Alfred Marshall and he gave this definition in the year 1890, isn't it? उन्होंने 1890 को वो definition दिया था. और उनके लिए सबसे ज़्यादा importance क्या है? He gave more importance on human welfare, लोगों के welfare को उन्होंने ज़्यादा importance दिया. ओके, द नेक्स्ट इज देखो अल्फ्रेड मार्शल का पिक्चर. देन उन्होंने वो डेफिनेशन कौन सा बुक में दिया था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. कौन सा साल में दिया था? 1890 को उन्होंने. ही गेव दिस डेफिनेशन इन द ईयर 1890. ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट, वो मेरा हैंड रिटन है, हैंड रिटन नोट्स है. जस्ट मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत मतलब विद एग्जाम्पल्स क्लास नोट्स बनाया था. वो सब आप लोग एग्ज़ाम पे मत लिखना. ओके, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लेवल. मैंने सिर्फ ओनली फॉर मतलब समझने के लिए, आपका ओनली टू मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वो लिखा, so that you can understand the definition of economics in a better way. Okay, देखो the word economics has been derived from Greek word oikos and nomos. It means, what do you mean by the term oikos? And that is, it means household. And what do you mean by the term nomos? That is management. So thus we can say that it means the science of the principles of household management. Okay, so next is, for example, this example I have already discussed, so again I am going to revise. So देखो for example, if your pocket money that you want to spend is unlimited, जो आपका पॉकेट मनी है जो आप स्पेंड करना चाहते हो वो अगर बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड होगा, अगर आपका पॉकेट मनी अनलिमिटेड होगा, देन आप क्या करोगे? वो आपका कॉमन सेंस अप्लाई करो. अगर आपका पॉकेट मनी अनलिमिटेड होगा, इफ़ योर पॉकेट मनी इज़ अनलिमिटेड, देन डेफिनेटली you could have purchased all the things in your life that you want in your life. You will purchase everything what you want. Okay, as because क्यों वहाँ पे देखो your pocket money is unlimited, so you will try to buy everything what you want in your life, isn't it? But suppose the next is, देखो since your pocket money is limited, since आपका pocket money क्या है? Limited है, so you have to choose only those things that you want the most. आप कौन सा चूज़ करोगे? अगर आपका पॉकेट मनी लिमिटेड है तो आप वही चूज़ करोगे
जो आपके लाइफ में ज़्यादा चाहिए, ठीक है, जो आपके लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना आपका नहीं होगा। अगर पॉकेट मनी लिमिटेड होता है तो आप पॉकेट मनी को फालतू का खर्चा नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। आपको पॉकेट मनी से वही काम करना होगा जो आपको ज़्यादा चाहिए एंड ज़्यादा ज़रूरत है, व्हाट यू वांट द मोस्ट, द थिंग्स व्हाट यू वांट द मोस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज एक्चुअली ए बेसिक टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। वहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि देखो, मीन्स वी हैव टू यूज आवर लिमिटेड इनकम और लिमिटेड रिसोर्सेज प्रॉपरली और इफिशिएंटली सो दैट इट गिव्स अस मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ओके, I hope the concept of economics is now more clearer to you all. अगर फिर भी then also if you have any confusion then please question तो बनता है भाई, है कि नहीं। then next देखो एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज, और एक एग्जाम्पल जैसे मैंने बनाया, वो सब एग्जाम्पल आपको बुक पे नहीं मिलेगा। सो सपोज द मंथली इनकम ऑफ योर फादर इज 25K। ओके, उनका मंथली इनकम कितना है कि मंथली इनकम ऑफ योर फादर इज 25,000। सो नाउ he will decide, मतलब उनका इनकम कितना है 25,000। सो नाउ he will decide how to use his money properly, किस तरह से उनको 25,000 यूज़ करना है, क्योंकि उसका बहुत सारा यूजेस है, उसका बहुत सारा ऑल्टरनेटिव यूजेस है। उनको 25,000 से सिर्फ एक काम नहीं करना है, ही मतलब उनको क्या करना है, मेनी थिंग्स करना है, बहुत सारा काम करना है उस पैसे से, मतलब सो रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ओके, सो देखो, he will decide how to use his money properly and thus with this amount he will try to fulfill the demand and needs of his family members। वो पैसे से वो उनको क्या करना होगा, वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह से उनको वो पैसा यूज़ करना है। then he will try to with this amount he will definitely try to fulfill the demand and desire needs of his family members। वो पैसा से वो क्या करेंगे कि सबका डिमांड जो है, सबका जो चाहिदा है, सबका जो ज़रूरत है उसको फुलफिल करने का ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो पापा को बहुत कुछ काम करना होता है, सो उनका जो पैसा होता है उसका बहुत सारा यूजेस होता है, ऑल्टरनेटिव यूजेस होता है। उनको घर का अगर कोई रेंट पे रहता है तो रेंट देना है, बच्चों को पढ़ाना है, इसके बाद खाना घर का देना है, बहुत काम होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है, मतलब इकोनॉमिक्स हमें बोलता है कि किस तरह से, फ्रॉम इकोनॉमिक्स वही हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से हमें रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना है, प्रॉपरली यूज़ करना है, एफिशिएंटली यूज़ करना है, एंड किस तरह से चॉइस, मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें से अच्छे से चॉइस करना है कि कौन सा करने से अच्छा होगा, कौन सा करने से नहीं होगा। सो वही कि किस तरह से हमें लिमिटेड रिसोर्स को प्रॉपरली और एफिशिएंट यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट, सो देखो उनका मंथली इनकम 25K है, दैट इज़ 25,000। सो डेफिनेटली ही कैन नॉट गो बियॉन्ड हिज लिमिट, 25 के बाहर वो जा नहीं सकते। then thus managing the unlimited wants of the family with his limited income। so वो क्या करेंगे, he will try to manage the unlimited want of his family member with limited income students। okay, so this is what economics tells us, how to use resources properly out of unlimited ones। so economics हमें क्या बोलता है कि हमें किस तरह से resources को properly use करना है out of your limited resources or out of your unlimited ones। so this is a basic teaching of economics my dear students। so I hope वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। द नेक्स्ट इज, सो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, देयर वो टॉपिक आपके लिए पूरा न्यू है। सो वो जो टॉपिक है मैंने पहले डिस्कस नहीं किया। सो देखो स्टूडेंट्स, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। सो स्टूडेंट्स, देयर आर मेनली डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, सो कितना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, बहुत मतलब डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, जैसे कि आपका कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, ऑल दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो व्हाट डू मीन बाय द टर्म कंजम्पशन? कंजम्पशन मीन्स दोज हु कंज्यूम गुड्स, दैट मीन्स यूजिंग अप ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स आप यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ में, जो भी गुड्स का आप यूज़ कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन, मतलब यूजिंग अप ऑफ गुड्स। वाई क्यों आप गुड्स को यूज़ करते हो? डेफिनेटली फॉर योर सेटिस्फेक्शन पर्पस, डेफिनेटली फॉर योर सेटिस्फेक्शन पर्पस, डेफिनेटली अपने इनकम से आप गुड्स को खरीद के उसको यूज़ करते हो ओनली फॉर योर सेटिस्फेक्शन पर्पस। ओके, एम आई मेक माई सेल्फ क्लियर? सो आई होप क्लियर होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मैं तो हूँ ना। सो देखो, दोज हु कंज्यूम गुड्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विथ हिज गिवन इनकम,
दे आर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंजम्पशन। मतलब यूजिंग आप ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स आप यूज़ कर रहे हो, जो बुक आप यूज़ कर रहे हो, जो आप खाना खा रहे हो, जो आप पेन यूज़ कर रहे हो, पेन से जो लिखते हो, जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हो, तो ऑल दीज आर मतलब क्या है, वो सब क्या है, कंजम्पशन है। देन व्हाट डू मीन बाय द टर्म प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, दैट इट मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग। ओके, जो प्रोड्यूस कर मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गुड्स। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गुड्स। जो भी जैसे कि जो भी गुड्स हम बनाते हैं, जैसे कि राइस का प्रोडक्शन होता है, इसके बाद आप जो भी वो बोलो, वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स का भी प्रोडक्शन होता है। सो क्यों, देखो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गुड्स इन ऑर्डर टू मेक समथिंग फॉर कंजम्पशन पर्पस। देखो हम लोग प्रोड्यूस क्यों करते हैं, क्यों कुछ हम बनाते हैं, क्यों किसी गुड्स का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, क्यों, डेफिनेटली क्यों करते हैं, ओनली फॉर कंजम्पशन पर्पस। ओके, कंजम्पशन करने के लिए हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। जो भी हमारी लाइफ में जो भी मतलब बहुत सारे गुड्स है, ओके, ऑल दिस गुड्स सर, पहले क्या हुआ, पहले प्रोडक्शन हुआ। विदाउट प्रोडक्शन आपको वो सब गुड्स नहीं मिलता है कि नहीं? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो प्रोडक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। प्रोडक्शन, ओके, जो भी गुड्स हमारे पास हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं, ओके, वट एवर गुड्स दैट वी हैव, वट एवर गुड्स दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ, ऑल दिस, मतलब पहले क्या हुआ, उसका प्रोडक्शन हुआ, देन हम लोग उसको क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, देन उसका हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, देन व्हाट डू मीन बाय द टर्म डिस्ट्रीब्यूशन? सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी। देखो, जो भी गुड्स प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस करने के बाद उसको पूरे इकोनॉमी में, जो हमारा जो इकोनॉमी है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ओके, एमॉन्ग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। गुड्स को, जो भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है, उसका क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट, पूरे इकोनॉमी में उसका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एमॉन्ग द डिफरेंट sections of the society. So it means distribution of goods in an economy after production, goods are distributed among different sections of the society. Okay, so next देखो, finally we want to know how the national income, total income earned by the people of our country. मतलब what do you mean by the term national income? national income मतलब जो total income हमारे country के लोग जो total income earn करते हैं, this is called national income. Okay, so we want to know how the national income arising from what has been produced in the country is distributed. मतलब देखो, हमारे कंट्री में जो प्रोडक्शन हुआ, उससे प्रोडक्शन होकर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उससे हमें कितना पैसा अर्न हुआ, उससे नेशनल इनकम कितना अर्न हुआ, दिस इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जैसे कि जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है, देन ऑल द गुड्स, जो गुड्स होता है, गुड्स आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जो गुड्स भी प्रोडक्शन किया जाता है, जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसका देन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दिस इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, डेफिनेटली उससे हमें पैसा अर्न होता है, उससे हम लोग पैसा मिलता है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम, स्टूडेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट देखो, हु आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर मतलब जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर। व्हेन यू सेल गुड्स टू मेक ए प्रॉफिट, जब आप कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करोगे, देन मार्केट में सेल करोगे, क्यों सेल करते हो? ओनली फॉर योर प्रॉफिट पर्पस, है कि नहीं? सो maybe you are a shopkeeper, then you are called a producer. Okay, so in simple word, it means those who produce goods and offered for selling purpose in the market, they are called producer. I hope producer ज़्यादा आपको बोलना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा. So please try to understand. Okay, the next is who are called consumer, जो goods को यूज़ करता है, जैसे कि we all are called consumer. हम लोग goods को यूज़ करते हैं, मार्केट से उसको खरीद के, फर्स्ट ऑफ ऑल we buy, हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं, देन all the goods are used by consumers, definitely. So we all are called consumer. Those who use goods, they are called consumer. जो गुड्स का यूज़ करते हैं वही कंज्यूमर कहलाता है. जैसे कि आप लोग में ऑल आर कंज्यूमर, मैं भी यूज़ करती हूँ मोबाइल फ़ोन को, आप भी टेक्स्ट बुक को यूज़ कर रहे हो,
बहुत कुछ है, ठीक है, डेली लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड, सॉरी, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर स्टूडेंट्स. सो आई होप ऑल दिस टॉपिक्स, जो टॉपिक्स आज मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया. सो अगेन, सो नाउ ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूशन देन प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन clear your doubts, students. Okay, so for today, thank you, students. Bye bye.